के न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारी बारिश की वजह से सूरत के मिट्टी खाड़ी इलाके में सड़कों पर, घरों में, दुकानों में पानी भरा हुआ था। लोग घरों में फंसे हुए थे, लेकिन अब बारिश रुक चुकी है और पानी भी कम हुआ है। लेकिन वहां पर लोगों का क्या हाल है, ये सबको बताने के लिए ग्राउंड जीरो से शरीफ शेख की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सूरत। के न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शरीफ शेख और आज हम आए यहाँ पे लिम्बायत में, जहाँ पे मिट्टी खाड़ी विस्तार में 2 दिन पहले बहुत ही पानी भरा हुआ था और अभी कुछ बढ़ा है। और जिस रास्ते में मैं खड़ा हूँ, ये रास्ता सिटी की ओर जाता है, सूरत स्टेशन की ओर जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये रास्ता यहाँ पे शुरू हो गया। कल ये रास्ता बंद था, आज ये शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे प्रशासन की बात कर रहे हैं तो पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पे खड़े हुए सिक्योरिटी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे खड़े हुए। और इस तरफ का अगर हम हाल देखें, अगर आप इस तरफ आएंगे तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि पानी बहुत कुछ ऊंचा चुका है, लेकिन अभी भी पानी बहुत कुछ है। और अगर आप दीवारों पे निशान देखोगे, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे दीवारों पे आपको निशान दिखाई देगा, जो तकरीबन 5-6 फीट जैसा पानी भरा हुआ था। और अब मुझे लगता है वो 2-3 फीट जैसा पानी है, लेकिन पानी बहुत ही गंदा हो चुका है। और अब हम आगे जाके देखते हैं कि यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं या यहाँ के समाज सेवक हैं, उनसे बात करके हम पता करेंगे कि आगे का अंदर क्या हालचाल चालू है, उनके खाने पीने के बारे में, उनके पानी के बारे में हल पता करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहाँ पे हमारे पास अमित भाई राणा है, जो 2-4 दिन से यहीं पे पूरा खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे। हम इनसे पता करेंगे कि यहाँ पे क्या हालचाल है। जी अमित भाई, यहाँ पे क्या हाल है अभी? જે અત્યારે હાલમાં પાણીનો ઉતારો કાફી થઈ ગયો છે અને કરીબન સાંજ સુધી એક એવું લાગે છે કે પાણી પૂરું ઉતરી જવાની સંભાવના છે। તો હું મહાનગરપાલિકાને એક અરજ કરું છું કે જે જગ્યા ઉપર પાણી ઉતરી ગયું હોય એ જગ્યા ઉપર સાફ સફાઈની કામગીરી કરે। અત્યારે અમારા સાથે અબ્દુલભાઈ છે, આ બેન છે અમારા નંજુમબેન, અને આ કાદરભાઈ છે, બધા સાથે અમારી સાથે જે સમાજ સેવકો છે, કેમ કે આમાં કોઈ પોલિટિકલ્સ નથી, બધા બી જે અત્યારે સમાજ સેવામાં લાગેલા છે। આમાં કોઈ પોલિટિકલ્સ કામકાજ નથી। તમે જોઈ રહેલા છે કે અત્યારે તમે લોકો ઘણી જગ્યાએ જોવા આવ્યું છે, આપણા 4-5 દિવસથી કે બધા નેતા લોકો આવીને પોતાની પોલિટિકલ કરી ગયા છે। તો આપણે એ કામ નથી કરવાનું। અહીંયા બધા સમાજને લઈને, અમારી કોમને માટે, તમામ સમાજ માટેનું કામ કરવા માટે હાજર છે। અને 5 દિવસથી બધા સારી ટીમ, બધા મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો, અહીંયાના કાર્યકર્તાઓ અને અહીંયાના જે જનતા, અને ખાસ કરીને હું જનતાને એક અપીલ કરું છું કે જે આપણી મિટ્ટી ખાડી વિસ્તારમાં જે પાણી ભરાઈ ગયું છે, ત્યારે એસએમસી તંત્રએ બી સારું કામ કર્યું છે, પોલીસ તંત્રએ બી સારું કામ કર્યું ને એના સમાજના જે સેવકો છે એમને બી સારું કર્યું છે ને અહીંયાના આગેવાનોએ બી સારી મહેનત કરી છે। અલ્લાહ તાલાથી દુઆ કરું છું કે એમની મહેનતને કામયાબી આપે અને અમારી કોમની હિફાજત કરે। અત્યારે બીજું કામ જે છે તે અમારી કોમને ખાસ કરીને હું કહેવા માગું છું કે જે મિટ્ટી ખાડીના વિસ્તારમાં જે પાણી ભરાયું છે, હવે પાણી જે સુકાઈ જાય ત્યારે ખાસ કરીને આપણા બાળકો, બચ્ચાઓ પર ખાસ ધ્યાન આપે। કેમ કે સાફ સફાઈ માટે તમે એનો સાથ સહકાર આપજો, પ્રશાસનથી માંગ કરજો। જે બી જેને તમને કંઈ તકલીફ જેવું લાગે કે ભાઈ અહીંયા પ્રોબ્લેમ જેવું છે, તો એસએમસી કર્મચારી તમારી સાથે 24 કલાક સેવામાં હાજર હશે। હમણાં બી જોયું હશે તમે, પાણી ચાલુ થઈ ગયું છે, લાઇટ ચાલુ થઈ ગઈ છે, 4 ટ્રેક્ટર મોકલી દીધા, જમવાનું કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નથી। અને એના પહેલા કોઈ સંસ્થાએ મદદ કરી? અહીંયા તમામ સંસ્થાએ બી કામ કરી છે। એસએમસી તંત્રએ બી રહેવાને જમવાની બી સુવિધા રાખી હતી। કેમ કે ઘણી વખત મેં જ્યારે શરૂઆતમાં પાણી આવ્યું તો અહીંયાની જનતાને મેં અપીલ કરી હતી કે ભાઈ તમે ઘરની બહાર આવી જાઓ, જે લોકો જાગૃત લોકો, જે ઘરના મેમ્બર છે એ લોકો અહીંયા રહો, અને જે હા, અને સ્થાનિક લોકો જે અહીંયા જે છે એ લોકોની માટે રહેવાની જમવાની સુવિધા રાખી હતી સાહેબ તરફથી, એસએમસી તરફથી, અને પોલીસ તંત્રએ બી સારું કર્યું। અને આપણા સુરત શહેરના જે કમિશનર સાહેબ છે, આજે સુરતમાં જે બાળ આવી એ પહેલી વખત આપણા સુરત કમિશનર, અત્યાર સુધીમાં જેટલા કમિશનર આવ્યા એમાં પહેલાં સુરત કમિશનર જઈને જાતે આખી મિટ્ટી ખાડી વિસ્તારમાં ફર્યા અને એના માટે તૈયારીઓ કરીને કામગીરી કરી। जी हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब्दुल भाई, ये अमित भाई राणा थे, जो हमारे पास में यहाँ पे थे, और इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि पानी यहाँ पे तो बहुत कुछ निकल गया है। और इनका कहना ये है कि अंदर लोगों के पास में खाने पीने के लिए भी जितना मुमकिन हुआ उतना खाना पहुँचाया गया। सही बात है कि हर तरह से, पूरी तरह से पेट तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन जितना हुआ लोगों ने किया और उनके तक के खाना पानी पहुँचाया उन्होंने। लेकिन अगर अभी जो बात करें हम लोग, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बहुत कुछ गंदा पानी है।
तो प्रशासन से भी यही मांग है, प्रशासन से भी यही मांग होगी कि जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो पानी निकल जाए जल्दी से, तो इसके बाद में सफाई का भी काम करें ताकि यहाँ पे बीमारी ना फैले। और इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास में जो है यहाँ के अब्दुल भाई है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में, ये जो हाल है इसके बारे में उनका क्या कहना है। जी अब्दुल भाई। जी भाई, यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं यहाँ, और पिछले जो 2-4 दिन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे प्रशासन की जो गाड़ियाँ देखी, फायर ब्रिगेड के देखे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसरों को देखा, तो वो लोग अच्छे तरीके से कामगिरी कर रहे थे। पुलिस की कामगिरी बहुत सराहनीय कामगिरी है। हमारे लिंबायत विस्तार के जो पीआई साहब है, इन्होंने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन अभी हाल की जो परिस्थिति है, जो पानी उतरा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोई गाड़ी नहीं है और कोई भी एक फायर ब्रिगेड का कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई उच्च अधिकारी यहाँ पे आके खड़ा हुआ है और ना ही कोई साफ सफाई के पीछे ध्यान दे रहा है। सब जगह का पानी उतरा है। जहाँ पे पॉस एरिया है वहाँ पे पंपा गेट लगा के वो लोग ने फायर ब्रिगेड लगा के मशीनों से गाड़ियों को सब साफ करा जा रहा है और रोडों को साफ करा जा रहा है। लेकिन जो स्लम विस्तार है, खास करके मुस्लिम विस्तार, वो मुस्लिम विस्तार के हालत आप खुद देखते हो आपके कैमरे के हिसाब से कि ये बिल्कुल एकदम जैसी के वैसी हालत में, जब तक कि यहाँ कोई बीमारी नहीं फटेगी वहाँ तक ये लोग कोई काम करने आने वाला नहीं है। हम पहले से ये बात करते आए कि ये लोग मुस्लिमों को नज़रअंदाज करके चलते हैं और चलते आ रहे हैं। ये जो खाड़ी विस्तार है, यहाँ पे जो पंप चलता था, ये पंप बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ये लोगों ने जो पंप लाए थे वो पंप भी बिल्कुल काम नहीं किया। उसके वजह से ये 5 दिन तक के लोग पानी के अंदर रहे थे। और सूरत के अंदर 7,500 करोड़ का बजट है, उसके बाद भी एक अच्छा कोई सिस्टम ये लोग के पास पंपिंग का नहीं है कि जो पानी ये लोग गटरिया पानी जो भरता है उसको साफ किया जाए। मैं तंत्र से भी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी और कमिश्नर से भी ये गुहार लगाता हूँ कि ये सिस्टम को जो 35 साल से मीठी खाड़ी के अंदर हो रहा है, इसको बंद किया जाए। पब्लिक इसमें रोष में है और ये जो दीवार बना के जो लोगों को सताया गया है, ये दीवार को खास करके तोड़ा जाए। ये थे हमारे साथ में यहाँ के अब्दुल बशीर भाई, और इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो पानी अभी निकल गया है, उसके बाद में जो गंदा पानी है, इसके लिए प्रशासन का जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं है। और इनका कहना ये है कि यहाँ पे पंप लगा के जल्द से जल्द पानी निकालना चाहिए ताकि यहाँ पे और ज़्यादा बीमारी ना फैले। और ये जो दीवार के बारे में कह रहे हैं, तो ये इसके लिए प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे पानी जमा भी ना हो आइंदा साल, और पानी के जल्द से जल्द निकाल भी हो जाए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।